extensive experience of counseling and has worked with many renowned institutions like Sophia Girls School, Meerut, St. John Senior Secondary School, All Saints School, and so on. And she has been an eminent part of our school also. Currently, she is working as faculty psychology in Raghunath Girls Postgraduate College. One can also find her blogs on successmantra.live and videos of various seminars on YouTube. Ma'am's husband, Mr. Rajan Swami, is an assistant commissioner in Customs and Central Excise Department, and she's a proud mother of 3 and 2 daughters. We all have been really benefited by Mrs. Babita's previous sessions on balanced diet, indoor and outdoor games, moral values, etc., and are sure of having an equally valuable session today as well. So, over to Babita ma'am for a very enriching session. Ma'am, please begin the session. Thank you, ma'am. Very big thank you to you and a sweet good morning to you. Good morning, principal ma'am, teachers, and my dear students. I am very privileged today that I am coming in your school. And today's our topic is how we engage all of you in this Corona time. And I am my whole आपको अभी मैम ने सब दे ही दिया है. I am Mrs. Babita Sharma Swami and an educational counselor. And today's my topic is how do we engage children in this Corona time. Okay, I think ma'am is showing you PPT. And I want to discuss all of you things कि हम अपने इसमें keeping happy and engaged in COVID time. आप लोग इस जो हमारा ये अभी कोविड वाला टाइम है इसमें किस तरह से पूरे दिन अपने को खुश रख सकते हैं, अपने को एंगेज रख सकते हैं. मैं बिल्कुल आप लोगों के बिल्कुल मन की बात सब ये सब कहूंगी आपसे. और आई हैव सम टॉपिक्स, सम ऑफ देम ऑलवेज लिव इन प्रेजेंट. देखिए, very first thing you have to learn in your life, it is my all experience, always live in present time, because you know what is present. Present you know, you don't know about your future, you only live in your present. क्योंकि प्रेजेंट में आप जानते हैं कि अब इस टाइम आप क्या कर रहे हैं. जैसे आज हम लोग अपना क्लास ले रहे हैं, आपके साथ मैं जुड़ी हुई हूँ. इस टाइम हम प्रेजेंट में जो कह रहे हैं वो आप लोग सुन रहे हैं. Past is past. Today, what is the date of today? Anyone tell? What is the date of today? Anyone? 26. 26 June. Today is 26 June. Yeah. So now we don't know na what is going on at 27 June. We only know what is 26 June. So live in present only and do all the good things in yourself. Then our future is different. Then may I audible? I am something a technical problem I think. May I audible? May I audible? Oh, okay. So present is a present from God. Focus in always on your today's work. Yeah, good beta. And I am saying this. आपको कुछ बातें मैं आपको बताऊंगी अभी जो हमें हमेशा. Always pray to God in the morning and make it a habit to rise early. Always wake up early in the morning, है ना, so that you can make them relax before long online sitting sessions. Ma'am, I think there is a problem. I don't listen anybody. Please, ma'am, see this. Hello. Yes, ma'am. I'm not excuse me. anything. Please, Yeah, first of all, tell everybody else to mute their cameras, to turn off their cameras. All the children, teachers, turn off your cameras. Only Babita ma'am will have a camera on and the PPT running. Rest all switch off your cameras and all children to just mute their mics. Nobody is going to interrupt in between. No good morning, nothing. Yes, only ma'am is going to speak to us. Daria, Fazila, switch off your cameras. Ma'am, 1 minute. Ma'am, 1 minute. Cameras.
Everybody switch off your cameras. Please listen to what ma'am is saying. Cameras, mute your mic. Daria, switch off your camera. Ma'am, my camera is open. Beta, switch it off. Close your camera. Mute your mic. May I start now, ma'am? Yes, ma'am. Please, Babita ma'am, please start. I'm starting from very first slide. Okay, I'm starting Yes, from ma'am. very first slide. Me, Mrs. Babita Sharma, is going to start your session of today, and our topic is how do we engage our children in this Corona time. Okay, and I have some points and some very useful points. That number one is always please live in present, because we know present. What is present we know. We don't know about your future. है ना? Future is a mystery. We all know past is past. जो चला गया that is different. चला गया चला गया. और अगर हम उसके बारे में ऑलवेज थिंकिंग नेगेटिव थिंग्स कि ये हुआ वो हुआ, बच्चों बहुत ध्यान की ये चीज है कि नाउ टुडे इज 26 जून है ना, तो हमें आज का पता, हमें जो कल चला गया वो हमें गया, और 27 जून में क्या होगा वो हमें अभी नहीं मालूम है. तो मेरा ये कहना है वी ऑल हैव 24 आवर्स इन अ डे, 8 आवर्स फॉर स्लीपिंग गई है ना, 2 आवर्स फॉर आवर डेली टास्क, हम लोग ये किया वो किया, and I know that you only have 4 to 5 hours for study. So make a habit to always live in present. और अगर आप present में रहते हैं, number 1, if you have a copy, please write down. If number 1 is always live in present, because we know present, we don't know future, and past is going. Okay, and this is my first point. And now number 2, please make sure teachers and parents, if they are listening, if you are in positive mood, तो आप अपने बच्चे को भी पॉजिटिव रहेंगे. तो सेकंड लाइन इज टीचिंग आवर किड्स टू डेवलप ऑप्टिमिज्म इन एनी सिचुएशन. इन एनी सिचुएशन, अगर आपके साथ कुछ वर्स्ट भी हो रहा है, एकदम से मान लीजिए, मैं आई एम गिविंग एन एग्जांपल, आपका छोटा भाई या बहन है, आप आ रहे हैं, जीने में से कोई एकदम से गिर गया, एक चीज तो ये हटपट होकर हम ऐसे करके बैठ गए कि अरे ये तो गिर गया, अब क्या है. दूसरा कि हमने एकदम से सोचा, पॉजिटिवली सोचा, हम उठे, हमने उठकर उसको देखा, एकदम से हमने कहीं फोन किया, हमने हेल्प ली, हम एकदम से कोई बाइक स्कूटर उठाए, एकदम हॉस्पिटल ले जाए, क्योंकि हमने अपने माइंड को सेटअप किया था कि अब हमें क्या करना है. तो पैनिक नहीं करना है. सेकेंड थिंग, ऑलवेज ऑप्टिमिज्म क्यों करना है, क्योंकि स्ट्रेस तो आएगा लाइफ में, कभी कुछ आएगा कभी कुछ आएगा. इन आवर साइकोलॉजी की स्ट्रेस को वी हैव टू मैनेज द स्ट्रेस. तो स्ट्रेस को हम कैसे मैनेज करेंगे, हम ऑप्टिमिज्म होकर मैनेज करेंगे कि हम लोग सोचें कि नाउ नंबर 2 इज ऑलवेज डेवलप ऑप्टिमिज्म इन योर माइंड इन एनी सिचुएशन. एंड मैं ये चीज टीचर्स को भी बोलूंगी, पेरेंट्स को भी बोलूंगी कि हम अपने बच्चों को एक पॉजिटिव से माहौल में रहना सिखाएं. नॉट always think about negative things. Don't always listen to news. मैं तो ये कहती हूँ कि सुबह उठ के कभी न्यूज देखें ही नहीं, बच्चे भी नहीं देखें, बड़े भी नहीं देखें. आफ्टर 8 AM, आफ्टर 9 AM, so you have to watch TV if you want to see TV. And number 3, you have to practice emotional intelligence activities. We have 2 intelligence in our mind. One is intelligence like जिसे हम बोलेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, दैट इज अभी आप बहुत छोटे हैं, अभी आपको बाद में पता चलेगा. इमोशनल इंटेलिजेंस वी ऑल हैव. नाउ आई एम डिस्कसिंग व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस. इमोशनल इंटेलिजेंस मींस कि आप अपने दादा दादी के साथ किस तरह से बात करते हैं, आप अपने टीचर्स के साथ किस तरह से इमोशनली जुड़ते हैं, आप अपने सिबलिंग्स के साथ कैसे बात करते हैं, आपके अंदर किस तरह की बॉन्डिंग है सबके साथ, है ना. तो यू हैव टू बी सी दैट एंड मैनेज दैट थिंग्स. And this is the duty of our parents only and teachers only, that build emotional intelligence in all the children. अभी जैसे बच्चे अभी गुड मॉर्निंग बोल रहे थे, अभी जैसे बच्चे अपनी सारी बात कर रहे थे, तो हमें ये समझाना है उनको. They are very small, only the age of, I think this session is I think class 1, 2 and 8, and they are from the age of 4 to 5 years, then to 14 to 15 years, and this is the age of adolescence, young children. So in my thinking, they are very small, so we have to change their minds by putting them very intelligent things like positive things like emotional intelligence.
and we have to be see that they know the right things in their life, how to speak with the front of the teachers, how to speak with the front of the parents, and having, and they have to know the self discipline. What is the self discipline? If we know what is the self discipline, so we have to change all the things. And I think we all have a role model in our life, and I'm coming that point, why we need a role model in our life. Number one, like I am very much impressed by Mrs. Kiran Bedi, Mrs. Indira Gandhi, State Prime Minister Mrs. Indira Gandhi, your principal ma'am नो, आप लोग अभी बहुत छोटे हैं, आप लोग मिसेज इंदिरा गांधी के बारे में इतना नहीं जानते होंगे, बट आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड फ्रॉम दैट लेडी कि क्यों उस टाइम में थी हमारे देश की प्रधानमंत्री, जब कि नॉर्मली लेडीज इतना नहीं थी पॉलिटिक्स में. और मिसेस किरण बेदी, शी वाज द फर्स्ट शी इज द फर्स्ट आईपीएस लेडी ऑफ आवर इंडियन पुलिस सर्विस. एंड अभी आप कभी उनके बारे में पढ़ना, तो उनसे मैंने बहुत सीखा है कि किस तरह से हम लाइफ में पॉजिटिव रहकर एज अ गर्ल, दिस इज गर्ल्स स्कूल आई थिंक, तो लड़कियां अगर अपने मन में चाहें तो वो क्या नहीं कर सकती. तो अब तो लड़कियां, अब जिस टाइम अब आप लोग हैं, गर्ल्स आर डूइंग वेरी वेल, बट इन माय टाइम ओनली फ्यू गर्ल्स वर डूइंग. तो इफ यू हैव टू बी लर्न सेल्फ डिसिप्लिन, तो अगर आप डेली का हाइजीन, आजकल के टाइम में भी हाइजीन पर भी आएंगे, तो अगर आप अपनी लाइफ में ये सीखते हैं कि हम सेल्फ डिसिप्लिन होके कैसे रहें. So self-discipline means rise early in the morning, then prayer to God, and if you want to learn something from meditation, you have to be doing meditation. Then regular exercise is very, very important. Please write down this. Regular exercise is very, very important. You all are kids, and मतलब आपको 2 घंटे तो मतलब प्लेइंग अभी ऊपर आएंगे. अगर आप एक्सरसाइज करने की आदत डाल लेते हैं अपने, तो वो बहुत आपको हेल्प करता है. और आपका जो बॉडी का एक मैनेजेबल थिंग्स होता है, एक कॉर्टिसोल लेवल है, आपका बॉडी किस तरह से वर्क करेगी, वो पूरे दिन में आप बहुत अच्छे से महसूस करेंगे. आप यू कैन चूज इफ यू लाइक मॉर्निंग, तो आप सुबह सुबह आप अगर जल्दी उठते हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, उसके बाद आप नीचे आके योगा कर सकते हैं. यू कैन चूज योगा एंड उसके बाद योगा है, मॉर्निंग वॉक है, उसके बाद आप साइकिलिंग कर सकते हैं. आजकल के टाइम में हम लोग बाहर नहीं जाते हैं, तो हम घर पे साइकिलिंग कर सकते हैं. और इन अ होल डे प्लेइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप सिबलिंग्स हैं, आप लोग जाकर अपना भाई बहन मिलकर खेल सकते हैं, घर में ही खेल सकते हैं. और इन आवर टाइम, मैंने अभी कुछ दिन पहले बोला था, स्टापू होता है. स्टापू, वी हैव टू बी नो व्हाट इज स्टापू. आई थिंक आप लोग जानते हैं, मैंने आपके स्कूल में देखा था बच्चे. एनीवन, कोई लड़की बताना चाहेगी व्हाट इज टापू? एनीवन ऑफ द यू डू यू नो व्हाट इज टापू? तो उसके बाद आप टापू खेल सकते हैं, आप लोग चेस खेल सकते हैं. और अभी मेरा एक ये हमारे इस वाली बात हो गई कि हाउ डू वी एंगेज बाय प्लेइंग, बाय एक्सरसाइज. और नाउ मैं अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़े सेंसिबल इशू पर आऊंगी, दैट इज इंटरनेट. देखिए, इंटरनेट जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है. वी ऑल नो अबाउट इंटरनेट, बट अभी थोड़ा सा, यू आर ऑल आर गर्ल्स एंड ग्रोइंग गर्ल्स, एंड आई नो सम आर एडोलेसेंट गर्ल्स. कभी कभी हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाता है दिस इंटरनेट. अभी हम तो इतने बड़े हैं, हम लोग भी जैसे कभी कभी मैसेंजर यूज करते हैं, तो कभी कभी हम लोग बड़ी उल्टी सीधी पिक्चर्स भी आ जाती हैं उसमें. तो आपको ना बहुत ध्यान से इसको यूज करना है. और इन माय थिंकिंग, अगर आपकी मदर आपके साथ में है या स्कूल में टीचर्स हैं, दे हैव टू बी चेक योर फोन. एंड मतलब ये है कि अभी आप लोग नहीं जानते हैं कि बहुत सारी चीजें आप लोग नहीं जानते हैं, बहुत सारे ऐप्स आप लोग नहीं जानते हैं. तो अगर आप उन्हें ना भी यूज करें तो कोई वो नहीं है. हाँ, अगर पढ़ाई के लिए यूज करना है तो दैट इज वेरी गुड थिंग, क्योंकि देखो अभी मैं और आप बात कर रहे हैं थ्रू दिस फोन. इंटरनेट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टाइम. अगर ये नहीं होता तो हम 1.5 साल से 2 साल से हम लोग जो कोरोना टाइम में अंदर हैं, हम लोग पढ़ भी नहीं पाते, हमारी क्लासेस भी नहीं हो पाती. तो
इस टाइम तो ये हमारे लिए एक वरदान है, बट और अगर आप अकेले में इसको यूज करते हैं देन यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आपको क्या यूज करना है, कौन सा आप यूज करना है, किस तरह से आपको इंटरनेट यूज करना है। ये दिस इज अ वार्निंग ऑल्सो। गर्ल्स प्लीज, इन माई थिंकिंग आई एम ए काउंसलर और मैं आपको ये बात बताना चाहूंगी, धीरे 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 कभी कभी ये बहुत गलत हो जाता है। मैंने भी देखा है कि इसमें बहुत अलग तरह की पिक्चर्स आने लगती हैं। आप लोगों को भी कभी कभी कुछ नहीं पता क्या यूज करना है, तो इसमें आपको बहुत ध्यान रखना है। और इन माई थिंकिंग कि आपको थोड़ा मोबाइल को पढ़ाई के अलावा थोड़ा अगर आप ना भी यूज करें तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान कर लें कि मोबाइल आपको कैसे यूज करना है। नाउ नंबर 4, hygiene. Hygiene is very important and you have to be wash. मतलब हेयर आप हफ्ते में एक बार धोते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यू हैव टू वॉश डेली एंड नाउ डेज always frequently you have to wash your hands frequently in 4 times 5 times। अब बाहर से आते हैं तब धोइए, तो you have to wash your frequently your hands and ये चीज आपको बार बार ध्यान रखनी है कोरोना टाइम में कि बाहर से आ रहे हैं किस तरह से यूज कर रहे हैं। ये ऐड नहीं है, ये एक आजकल की बहुत जरूरत है। यू हैव टू बी वॉश योर हैंड्स frequently, take daily bath, and now I have some very important 5 to 6 things. Please write down. Wash up your hands frequently, take daily bath. Third, do meditation regularly, do regular exercise, and if you have time, and then spend 2 to 3 hours in a. You have to be choose like playing chess and playing स्टापू, है ना। और उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस। अभी मान लीजिए यू हैव योर ग्रैंड पेरेंट्स इन योर होम, तो आप उनके साथ अपने आप टू शेयर ऑल योर थिंग्स एंड दिन में एक बार आप वीडियो चैट कर सकते हैं अपने से फ्रेंड्स के साथ। और उस वीडियो चैट्स में मान लीजिए आप लोगों ने कुछ सुंदर सी ड्राइंग बनाई है, आपने कोई बहुत प्यारी सी चीज बनाई है, तो आप लोग आपस में एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, बट मेक इट क्लियर कि योर मदर इज विद यू, है ना। क्योंकि आप किसके साथ वीडियो चैट कर रहे हैं, अभी यू आर वेरी स्मॉल, वो पॉइंट्स को दोबारा ले आओ, यू आर वेरी स्मॉल गर्ल, तो आप उसमें आपको ये देखना है कि आप किसके साथ वीडियो चैट कर रहे हैं। एंड मैं बार बार ये बात इसलिए कह रही हूँ कि मैंने कुछ मेरे पास केसेस आते हैं, मेरे पास केसेस आते हैं कि ओनली 14 to 15 ईयर गर्ल्स, और उसके बाद देखिए कहना तो मुझे सब चीज ही पड़ेगी आप लोगों से, ओनली 12 ईयर गर्ल एंड उसका रिलेशनशिप हो गया, उसकी फ्रेंडशिप हो गई, तो दिस इज नॉट द एज, है ना। तो थोड़ा सा आपको ये भी देखना है। और एज ए काउंसलर मैं आपको ग्रोइंग अप गर्ल्स को एडोलेसेंट एज पर आऊंगी, अभी पॉइंट्स ले आऊं, एडोलेसेंट एज पर आऊंगी। एडोलेसेंट इज द एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। आप लोगों को खुद नहीं मालूम कि आपके अंदर कितनी शक्ति है। Is any girl of here age of 14, 15 in the class 8? Any of her? Points points। तो उसमें मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि ये मन करेगा कि हम क्या कर लें, हमारा ये मन करेगा कि हम क्या कर लें, पर उस टाइम अगर किसी की मदर मुझे सुन रही हैं तो मैं उनके साथ एक बात शेयर करना चाहूंगी कि अगर आपकी बेटी 14 और 15 ईयर की एज में, 2 years आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हर ओनली एंड यू ओनली, तो आप उनको सब चीज बताएंगे। वो ही एक एज ऐसी है कि वो लाइफ में कुछ आगे क्या करेंगे वो उनका डिपेंड करता है। 9th to 10th मैं किसी का यहाँ पर आपको बताऊंगी, आई हैव एक्सपीरियंस क्लास 9th क्लास 10th। अगर कि क्लास 9th या 8th की कोई मदर है और मेरे से बात करना चाहती है, मैं उनसे बात करना चाहूंगी। क्लास 8th की या किसी की मदर बात करना चाहती है या बच्ची भी बात करना चाहती है, मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों को ये लगेगा कि यू आर राइट ओनली, योर टीचर इज रॉन्ग, योर मदर इज रॉन्ग, योर पेरेंट्स आर रॉन्ग, ओनली यू आर राइट। तो दैट थिंकिंग इज वेरी बैड, क्योंकि उसमें आपको यही नहीं पता चलेगा कि आप कब किस तरफ एक गलत रास्ते पे चले। तो थोड़ा सा एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए मैं ये कहूंगी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू बी स्टडी एंड वी ऑल हैव 24 hours। मैंने पहले बोला 8 hours फॉर स्लीपिंग, 2 hours फॉर योर डेली टास्क, एंड यू हैव टू चेक यू हैव टाइम 4 to 5 hours और
for study or not. And then playing is very important. Your hygiene is very important. Emotional intelligence is very important. And one thing I am coming, IQ, intelligence quotient. In our psychology, we have to be check this girl have to check the intelligence quotient है कि आपका IQ level क्या है. IQ level जानता है anybody? IQ level wants to share with me? IQ level जानते हैं आप? IQ क्या होता है? इंटेलिजेंस क्वेश्चन क्या होता है? एनी टीचर? आपको ये देखना होता है कि बच्चा किस तरह से आपकी बात को सुन रहा है. What is their perception? How It is the intelligence level of the child. Shweta ma'am, I want to know, do you know what is intelligence? Intelligence quotient, IQ level. Yes, मतलब yes. I am not want to know very in detail, बस कि आप बच्चों में कैसे पहचानते हैं कि ये बच्चा बहुत अच्छे से कर रहा है, ये बच्चा थोड़ा कम कर रहा है. Because I am coming a special type of children, which we are say mental retarded children, but special children. How do you recognize? Just by checking their common and general intelligence, which we call common sense. That is mainly the IQ level of a child, of a person. As a person. One thing is very important. एक पिक्चर में दिखाया था अभी कुछ दिन पहले, अगर आपने देखा होगा, आमिर खान की एक पिक्चर थी. एंड तो टीचर्स को भी ये पहचानना आना चाहिए कि ये बच्चा कहीं स्पेशल तो नहीं है. आपने देखा था कि वो बच्चा स्पेलिंग मिस्टेक करता था. वो पूरी पिक्चर अभी जस्ट रिमेम्बर द नेम, अभी एकदम नाम याद नहीं आ रहा मुझे पिक्चर का. अभी आई थी आमिर खान की पिक्चर. तो उसमें वो बच्चा स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा था और वो एक टीचर ने उसको तारे जमीन पर दैट पिक्चर. तो उसमें क्या था कि वो टीचर नहीं पहचाना था कि उस बच्चे को प्रॉब्लम है और उसको नहीं समझ में आ रहा, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक है. तो इसमें कई बार क्या होता है, स्पेशल चिल्ड्रन भी होते हैं हमारे साथ. उन्हें कई बार स्पेलिंग्स की प्रॉब्लम होती है, कई बार ऑटिज्म होता है बच्चों में. तो देन वी हैव अ स्पेशल स्कूल एंड नाउ वी हैव CBSE भी गाइडलाइंस है कि वी ऑल हैव अ स्पेशल एजुकेटर इन आवर लाइफ. जैसे मैंने गाइडेंस एंड काउंसलिंग में देखा है कुछ मेंटल रिटार्डेशन. वी हैव 3 टाइप्स ऑफ मेंटल रिटार्डेशन. प्रोफाउंड चिल्ड्रंस होते हैं हमारे पास, कई बार बिल्कुल मेंटल रिटार्डेड होते हैं जो कि कुछ नहीं कर पाते. तो हम उनके साथ किस तरह से पढ़ाएं, तो इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि यू हैव टू बी चेक कि बच्चे में किस तरह की इंटेलिजेंस है. ये टीचर्स के लिए बोला मैंने आपको. नाउ हाइजीन हो गया, हमारा प्लेइंग हो गया, हमारा मोबाइल कैसे यूज करना है ये हो गया, हमें टीचर्स के साथ कैसे इमोशनल बॉन्डिंग हो गई ये हो गया, हमें किस तरह से सारे दिन में रहना है ये हो गया. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आप मुझसे बात कर सकते हैं. अच्छा, एक चीज और कि हम खुश कैसे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम सारे दिन में खुश कैसे हैं. अभी मैं आप लोगों में से किसी से पूछूं कि आप सारे दिन में खुश रहते हैं, तो मुझसे बहुत सारे लोग कहेंगे नो मैम, हम तो नहीं रहते. किसी बच्चे से कहूँ कि आप सारे दिन में खुश रहते हैं, कहेंगे हम तो नहीं रहते. क्यों? मान लीजिए मम्मी ने डांट दिया, हमने अपना मूड खराब कर दिया. मान लीजिए पापा ने डांट दिया, हमने अपना मूड खराब कर दिया. मान लीजिए हमने बाहर कोई न्यूज सुन ली, हमने अपना मूड खराब कर दिया. आज मैं आप लोगों को आई एम डिस्कसिंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन फ्रंट ऑफ यू. हाउ डू यू रिमेन हैप्पी इन अ होल टाइम? प्लीज राइट डाउन दिस. दिस इज अ मिरेकल एंड आई हैव एक्सपीरियंस दिस कि ये एक मिरेकल होगा टीचर्स के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी. हाउ डू यू रिमेन हैप्पी इन अ होल डे? अब मैं आपको बताती हूँ कैसे. मैं अभी आपके सामने बड़े आराम से आपके सामने ऑल आर डूइंग दिस सेशन, है ना. अभी मैं रेड साड़ी में बड़े अच्छे से आपके साथ बात करूँ. मान लीजिए अभी एकदम से कोई आता है इस रूम में और आके मुझे कहता है बलता मैम उठो, छोड़ दो ये सब, आप मत करो कौन सी सेशन, देयर इज इमरजेंसी. तो ठीक है, मुझे मान लो छोड़ के जाना पड़ा और मैं जाती हूँ इमरजेंसी देखती हूँ. देन वेयर इज द प्रॉब्लम? एनीबॉडी टेल वेयर इज द प्रॉब्लम? मैं आपके साथ बहुत आराम से बात कर रही हूँ, बहुत आराम से आपसे बात कर रही हूँ, हम लोग बहुत अच्छे मूड में हैं. वो फौरन बाहर से कोई आ रहा है, वो मुझे बता रहा है कि बाहर कोई इमरजेंसी है, आपको एकदम जाना है. Ashweta ma'am, anybody tell me then where I know this?
कहाँ से ये मुझे न्यूज आई? मैम प्लीज Can you थोड़ा please सा repeat your question? मुझे कहाँ से पता चला कि कोई प्रॉब्लम आई है? मैं अभी यार आपके सामने आराम से बैठ के सेशन कर लूं, कोई आता है मुझे कहता है उठो और बाहर इमरजेंसी है, बाहर चलो, और वो बहुत ही इज इन वेरी एंग्री मूड और बहुत परेशान। प्रॉब्लम कहाँ है? जी। प्रॉब्लम कहाँ है? क्या मुझे एकदम से, हाँ प्रॉब्लम कहाँ? Problem is maybe the person or the outside situation, because you are sitting in a relaxed mood. Yeah, I am in relaxed mood, है ना? So you are in, this time you are in relaxed mood, Shweta ji? I am Yes, in ma'am. relaxed mood. I am in Everybody is in relaxed mode. Problem is from outside. Problems are coming from outside. So we have to be checked कि हम लोग रिलैक्स बैठे, हम लोग शांत बैठे, हम लोग उसको ध्यान से सुने, और हम लोग देन अपने माइंड में 2 मिनट का ब्रेक दें। अब हमें नाउ व्हाट नेक्स्ट, एकदम से डोंट रिएक्ट, यू हैव to stop all things in your mind, 2 minutes break, एंड उसके बाद चेक करें कि हमें एकदम जवाब क्या देना है। पेशेंटली आप बैठे, आराम से आप सुने, अपने माइंड को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करें, और उसके बाद देखना आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप उनको एकदम सॉल्यूशन भी दे पाएंगे। मान लो आपको जाना पड़ा, आप जाकर उस स्थिति को भी देख पाएंगे। आपको अपनी जो अंदर की आपकी इनर शांति थी, इनर आपकी जो पीस थी, उसको खत्म नहीं करना। दिस इज द गोल्डन रूल। अगर आप ये चीज सीख जाते हैं, 2 मिनट पॉज, किसी भी बात में, कोई आपको गुस्से से बोल रहा है, कोई आपको शांति भंग कर रहा है, कोई गुस्से में बाहर से आ रहा है, अगर आपने ये लर्न कर लिया कि 2 मिनट पॉज देन स्पीक, और 2 मिनट के अपने माइंड में कि व्हाट नेक्स्ट, अगर आपने लाइफ में ये सीख लिया, आप देखना कि आपको गुस्सा ही नहीं आए। All persons are saying, all teachers are saying, all parents are saying कि everybody is in fear mood, और सबको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, बच्चे बहुत जल्दी इरिटेट होते हैं आजकल के टाइम। मैं आज एक एक्सरसाइज दे दूं, आज पूरे दिन में आप करके देखना इस चीज को, कि अगर हम शांत हो जाएंगे, हम जान जाएंगे कि हम पूरे दिन में किस तरह से बिहेव करें बच्चों के साथ, आप ऑटोमेटिकली देखना कि देयर रिस्पॉन्सेस आर, दे विल बी नो कि वो आगे जाके किस तरह से लाइफ को जिएंगे, वो आपको जवाब कैसे देंगे। देखना धीरे 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 आप खुद देखेंगे घर में एक शांति का माहौल होता जा रहा है, और ये जो 5 और 6 थिंग्स थी, पीस, प्योरिटी, लव, वो धीरे 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 लाइफ में वापस आ रहा है। क्योंकि आजकल के जमाने में मैं वही वाली बात कहती हूँ, आई एम साइंस बैकग्राउंड, फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, कि वी हैव 7P, दिस इज माय वेरी फेवरेट थिंग, 7P, पीस, प्योरिटी और लव, अफेक्शन, और ये सब जो चीजें थी हमारी, उनको हमें दोबारा से लाना है लाइफ में। जैसे कि फेथ, अभी मैं कहूँ कि एक साल का बच्चा है, उसे मेरे को दे दिया जाए और मैं उसको इस तरह से उछालूं, तो वो उस बच्चे को मेरे ऊपर फेथ होगा, वो बड़े खुशी खुशी प्योरिटी से लाफिंग करेगा मेरे साथ। क्यों? तो उसको मेरे पास फेथ है। लेकिन अगर मैं 6 साल के बच्चे को, 7 साल के बच्चे को बोलूं कि मैं आपको उछालूं, तो वो 2 मिनट रुकेगा, सोचेगा कि भाई कहीं मैं गिर तो नहीं जाऊंगी। तो ऑल थिंग्स आर इन माइंड, पॉजिटिव थिंग्स, नेगेटिव थिंग्स, तो हमें ज्यादातर पॉजिटिव पे फोकस करना है। हम सबके अंदर है ये, इवन मेरे अंदर भी पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी। तो पॉजिटिव को हमें बढ़ाना है, नेगेटिव को हमें दबाना है, और बहुत अच्छे से सोचकर चलना है कि हमें लाइफ में आगे हमारा व्हाट इज आवर रोल मॉडल। और एक आपको एग्जांपल देना चाहूंगी एलिफेंट का। एलिफेंट जानते हैं ना, सब बच्चे एलिफेंट जानते हैं, बड़ा आराम आराम से चलता है एलिफेंट। तो आप कभी देखना कि, यस मैम, हु इज सेइंग प्लीज, मैं किसी बच्चे से बात करना चाहूंगी एलिफेंट वाले एग्जांपल में। कोई एक बच्चा अपना ऑन करे, मैं फिर उसको बताऊंगी कि एलिफेंट कैसे चलता है, और ये वाला एग्जांपल मैं क्यों दे रही हूँ। एनीबडी गर्ल, कोई बच्चा 5th क्लास, 6th क्लास, एनी गर्ल प्लीज wants to interact with? Yeah. What is your name, baby? Very smart. I'm Atufa. Achha, okay. Please tell. Only Atufa will switch on the camera, no one else. Rest all of you switch on your cameras. Okay, Yes. okay, beta.
हाथी देखा आपने चलते हुए, ऐसे ऐसे एलिफेंट देखा चलते चलते, देखा? Yes, ma'am. अच्छा, कैसे चलता है वो, कैसे चलता है? आराम आराम Ma'am, से, it's very slow, slow, slow. आराम आराम से उसकी सूंड भी हिलती रहती है, ऐसे ऐसे चलता रहता है। ओके, अब हाथी के ऊपर मान लो कोई बैठा हुआ है, तो वो भी उसी तरह से चलेगा, धीरे धीरे हाथी की चाल से चलेगा ना, उसी तरह से। अच्छा, मान लो वहां Yes, पर ma'am. बहुत सारे डॉग्स आ जाएं, बहुत सारे डॉग्स आ जाएं और वो उस पर बहुत जोर जोर से बार्किंग करने लग जाए, शोर मचाने लग जाए, तो क्या हाथी बहुत तेजी से भागेगा? गिव मी आंसर क्विकली। रन फास्ट और नॉट, और मूविंग स्लोली 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 लाइक Yes, दैट? ma'am. तो आपको उससे एक चीज सीखनी, यू हैव टू बी लर्न कि हमें अपनी चाल अपनी लाइफ में लाइक एक हाथी की तरह से रखनी है। मस्त 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 चलना है, आराम आराम से, आराम आराम। ओके, और चारों तरफ से डॉग्स भी आ सकते हैं, लोग भी आ सकते हैं, और दे आर ऑफ टू टाइप। कुछ लोग आपके सामने आ जाएंगे, आपको हाथ जोड़ के नमस्ते करेंगे, और आपको गणेशा जी भी बोल सकते हैं। ना हिंदू रिलीजन हाथी को हम गणेश जी से भी जोड़ते हैं, गणेश जी आए हैं, नमस्ते करेंगे, आपको प्यार से बोलेंगे। और कुछ लोग पीछे से आपको पुश करेंगे कि जल्दी से हट जाओ यहाँ से, और कुछ लोग आपसे ये वाली जेलसी भी रख सकते हैं कि कुछ लोग आपके सामने आके आपको नमस्ते क्यों करें। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? कि आपको अपनी चाल में कोई फर्क नहीं लगना है। यू हैव टू बी चूज अ गोल। गोल मीन्स आपको एक लक्ष्य रखना है कि हमें लाइफ में क्या करना है। यू आर इन क्लास 5th, यू आर इन क्लास 5th और 6th? No, ma'am, I'm class 7. You are in class 7. Now what is your goal? This time what is your goal? Come to the class 8. Ma'am, only This time. education is my goal. Yeah, this is a very big thing. Coming to the class 8, है ना? This is your goal. This time this is your goal. So focus on your goal. I am the only class 8. तो आपको आराम आराम से पूरे दिन में अपनी पढ़ाई करनी है, पूरे दिन में आपको मैनेज करना है। यू हैव टू मैनेज योर टाइम टेबल, यू हैव टू मैनेज योर थिंकिंग, यू हैव टू वॉश डेली, है ना? मतलब आपको अपना एक टाइम टेबल बनाना है, खुश रहना है। जैसे प्यारे प्यारे से चीक्स है ना आपके, खुश खुश से दिख रहे हो, ऐसे रहना है पूरे दिन में। और एक हाथी वाली चाल चलनी है, अपना मस्त रह के अपना काम करना है ना? और उसके बाद कोई क्या बोलता है, आप उस सड़क को भी पार कर जाएंगे, डॉग्स पीछे रह जाएंगे, जो लोग चिल्ला रहे थे वो पीछे रह जाएंगे, और जो लोग आपको आके नमस्ते कर रहे थे उनके साथ आपको बड़े अच्छे से बिहेव करना है कि उन्होंने आपको बहुत अच्छे से ग्रीट किया। दिस इज द ओनली वे टू लिव हैप्पी इन अ होल डे। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। Okay, ma'am, thank you very much. God bless. So ma'am, I am coming to this point कि if we have a goal, set your goal, your priorities in your life, हमारा कौन सा गोल है, and think whole day about your goal and give a 100%. I am saying you are 100% towards your goal. अभी तो आपके सिंपल गोल हैं, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, these are your goals. बट थोड़े बड़े होने पर आप जब आप 12th में आ जाते हैं, जब आप ग्रेजुएशन में आ जाते हैं, then the goals are different. You have to be clear UPSC if you want to become an IAS officer in your life. So there is a UPSC. If you want to be a lecturer in your college, then there is a NET National Eligibility Test, है ना? And if you want to be a good teacher, then you have to be clear B.Ed, है ना? B.Ed होता है, and graduation is must. So आई एम डूइंग कैरियर काउंसलिंग ऑल्सो, एंड किसी टाइम आपको अपना कैरियर की कोई बात करनी है तो आपको स्कूल में आके बताऊंगी। तो आजकल तो बहुत सारे कैरियर्स हैं, आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस टाइम आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है कि ये कोरोना ठीक हो जाएगा, हम लोग बाहर जाएंगे, गेट के बाहर भी हम लोग जाएंगे और पहले जैसी लाइफ हो जाएगी। पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है। मेरे से किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, if you have any questions, put your question in front of me. कि मैडम हम कैसे खुश रहें, इन्होंने मुझे ये बोल दिया, उन्होंने मुझे ये बोल दिया, इसने मुझे गुस्सा कर दिया, है ना? गोल क्लियर नहीं है, मन नहीं करता है, पूजा नहीं करनी है, गुस्सा आता है, एनी क्वेश्चन,
जो बिल्कुल सिंपल आपके मन में आता है वो क्वेश्चन कीजिए मुझसे, मैं आंसर्स दूंगी आपको। और दूसरे, अभी मैंने आपको चीजें बताई हैं, हाइजीन, हैप्पीनेस, और आपकी प्लेइंग हो गया, आपकी मोबाइल तो आपको आईज के लिए ही नहीं कि आईज आपकी खराब होंगी, आपकी सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्लास 8 तक तो मैं नहीं सोचती कि आपके लिए मोबाइल अदर देन योर स्टडीज इम्पोर्टेंट है कि नहीं। ठीक है, मम्मी के साथ बैठ गए, पापा के साथ बैठ गए, फ्रेंड्स के साथ बात कर ली, व्हाट्सएप कॉल कर ली, वीडियो कॉल कर ली, बट उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि मोबाइल ऐप से या साथ बैठकर आप लोग चैटिंग करें या कुछ और करें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके लिए गलत हो जाएगा। इवन जब आई एम अ 50-year-old लेडी एंड आई एम स्केर्ड समटाइम कि कैसे कैसे मैसेज आ जाते हैं, कैसे कैसे लोग हमें भी मैसेज कर देते हैं। तो मैं बहुत सोच समझ कर देख रही हूँ, दिस टाइम इन दिस जनरेशन, मैं अपने आप को इस जनरेशन की नहीं मानती, मैं आपसे पिछली जनरेशन की हूँ। इस जनरेशन, जो ये वाली जनरेशन है, इसमें मुझे कभी कभी डर लग जाता है कि किस तरह से हमें मोबाइल यूज करना है। तो आप लोग तो बच्चे हैं, और ओनली एज ऑफ 12, 13, 14, ओके। इन माई थिंकिंग कि मोबाइल इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू, एंड प्लेइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड exercise is very important, hygiene is very important, studies are very important. Okay, girls? I think I'm seeing some boys also. And if you have any question, please ask me. Teachers, if you have any question, please ask me. Principal ma'am, कोई बात है, कुछ बात करना चाह रहे हैं रिगार्डिंग एनी साइकोलॉजी, रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन कि आपको क्या चीज इस टाइम परेशान कर रही है, बिल्कुल मैं बैठी हूँ, मैं आपको आंसर दूंगी। एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, या मैम, श्वेता मैम। Children, if you want to ask anything from ma'am, please go ahead. Ask any question that you may have. कोई टीचर्स भी बात करना चाहें, कुछ फैमिली की बात भी करना चाहें, क्योंकि वी ऑल आर लेडीज हियर, आई थिंक। कोई Yes. घर की बात करना चाहें, कोई, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज होते हैं हमारे पास, वी ऑल हैव वेरी इश्यूज, तो वांट टू डिस्कस। Ma'am, let us concentrate on kids because teachers can. Okay, Yes, ma'am. Kids, you have any question, please? Girls? बहुत आराम से बात करो बेटा, कोई बात नहीं है, जिसको किसी को कुछ बात करनी है पूछना है, जैसे कि Your mother, if you want to ask anything, you can ask from ma'am. या अगर आपकी मम्मा भी बात करना चाहें, आप अपना मम्मा से बोलो, मुझसे बात करें, कोई किस, या आई एम सीइंग अ लेडी, या ओह सॉरी, या आशा जी मैम। Yes, Pavitra ma'am. Your session was wonderful. Thank you so much for it. And I don't think our children, because you elaborated and explained everything so nicely, I hope everybody is feeling very relaxed and relieved, and there aren't many queries to ask. Yes, na? बट मैम मुझे ये है कि कोई एक जना पूछे, If any child would like to ask something, you can ask ma'am if you would want to जैसी ask बात about करें, कोई anything. गुडी सी बात करें, गुडी सी बात करें, कोई छोटा सा बच्चा। How did you like the session? You can tell ma'am this, girls. कोई छोटा बच्चा। Very good. Very nice. Open your camera. Ma'am, I have a question from you. Please ask बेटा. बेटा कैमरा तो ऑन करो। Yes. Ma'am, I am Zareen Khan. Yeah, beta. Please ask your question. Ma'am, I am saying that ma'am, I am very rude, and I will say that you are very rude and you are bad behavior. Who is rude? You? Yes, You are ma'am. rude. Who is saying? Your mother? Ma'am, all. All. Okay. First, please tell your name. You are Zareen Khan. Yes, You are ma'am. Zareen Khan from class 4th or 5th? From class 6th? I think you are in class 6th. No, ma'am. Okay, beta. You are in 5th. Okay. And how old are you, beta? How old are you? Ma'am, 12. You are 12. Okay. Zareen,
You have siblings, brothers, sisters? I'm girl sister. Okay. You are elder or younger? सबसे बड़े हो सबसे छोटे हो? मैम सबसे बड़े. सबसे बड़े. ओके. अब मैं आपको समझाऊं आपको रूट क्यों बोलते हैं सर? बताऊं आपको रूट? हाँ सुनो. आप जो हैं यू आर 12 year old एंड यू आर एल्डर इन योर फैमिली, तो आपके साथ ना सबको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन, जो आप करेंगे वो आपके छोटे भाई बहन करेंगे. और ये जो हमारा इंडिया है, हमारा जो समाज है, उसमें सब लोग बड़े बच्चों की तरफ थोड़ी लाइबिलिटीज हो जाती है ना. बड़े बच्चों की तरफ सब लाइबिलिटी हो जाती है. जरीन आपने शायद अपना फोन वो बंद कर दिया, कोई बात नहीं. तो उसमें क्या होता है कि आपको ना सब लोग देखने लगते हैं कैसे आप बात कर रहे हैं, कैसे आप बिहेव कर रहे हैं. और पेरेंट्स स्पेशली योर मदर, तो वो ये सोचते हैं कि अगर ये किस तरह से बात करेगी छोटों पे असर पड़ेगा, तो वो ना आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी से आ जाती है. हम लोग आराम से बात करेंगे जरीन किसी टाइम, मैं आपके स्कूल में आऊंगी, मैं आपसे कुछ टेस्ट देखूंगी और ये देखूंगी कि आपके प्रॉब्लम क्या है. लेकिन अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ कि आपको बॉदर नहीं करना है, आपको सोचना नहीं है कि आपको सब लोग इस तरह से क्यों बोलते हैं. आप ना अपना ध्यान अपनी पढ़ाई पे, फोकस ऑन योर स्टडी, अपनी हाइजीन पे, अपने खेलने पर. अच्छा एक चीज है, सच सच बताना, मुझे आपकी शक्ल देख के लग रहा है आप खेलते नहीं हो ना. सच बोलना मेरे से, आई एम अ काउंसलर. खेलते नहीं हो ना? Yes, सच ma'am. बोलना बेटा, खेलते, यू आर नॉट प्लेइंग? I like to pray नहीं and खेल I रहे? don't make friends. ओ फ्रेंड्स भी नहीं है, खेलते भी नहीं हो, और सारा दिन बड़ों की बातें सुनते रहते हो, बस मम्मी की पापा की, है ना. तो बेटा एक बात बताऊं, ये सब अब मैं क्या बोलूं इसमें. क्या होता है कि बहुत सारी फैमिलीज में लड़कियों को बोल देते हैं कि अच्छा बैठ जाओ, यहाँ चुपचाप बैठ जाओ. तो ये भी थोड़ा गलत हो जाता है. 12 साल का बच्चा खूब खेलता है, और यही वजह है कि आप रूड हो गए हैं. यही वजह आप रूड हो गए हैं जब आप खेल नहीं रहे, आपकी कोई फ्रेंड नहीं है. अच्छा बेटा आपकी क्लास में तो बहुत सारी लड़कियां हैं, आपकी क्लास में तो बहुत सारी लड़कियां हैं, आपने एक भी फ्रेंड नहीं बनाई? है? हाँ जी. नमस्कार जी. हाँ जी, की मदर बात कर रही है. हाँ जी. जरीन की कोई फ्रेंड क्यों नहीं है मैम? हेलो. आपका माइक म्यूट पे है, उसको माइक म्यूट अनम्यूट पे? कर लीजिए. माइक बंद हो गया आपका. मैम अब सही हो गया. हाँ जी, बीच में बंद हो गया था. 5 मिनट है केवल, 5 मिनट है. जरीन बेटा हाँ जी, अनम्यूट योर माइक. नाउ आई एम ऑडिबल, नाउ आई एम ऑडिबल मैम. नहीं बबीता मैम, Now यू I am आर audible. नाउ ओके फाइन. ओके. हाँ जी जरीन मैम. हाँ जी आप जरीन बोलिएगा, जी की जरीन मदर, मदर प्लीज से. आपके साथ मेरा एक सवाल है कि ये खेलती तो चलिए कोई बात नहीं, आजकल के टाइम में खेलना तो चलिए मैं नहीं कहूंगी, पर इनकी कोई फ्रेंड क्यों नहीं है? आप कैमरा ऑन कर लीजिए मैम. जरीन की मदर ने कैमरा बंद कर दिया. कोई बात नहीं, मुझे लग रहा है थोड़ा शर्मा रही है. कुछ भी नहीं है मैम. अर्षा जी वो जो मुझे प्रॉब्लम लिख रही है नॉर्मली हमारी इंडियन फैमिलीज में है कि हम 12 साल का बच्चा जो सबसे बड़ी लड़की है उसको ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर देते हैं. हाँ मैम, हाँ बोलिए मैम, बोलिए मैम. जरीन की मदर बोलिए प्लीज मैम, जो मन में है बोलिए, क्योंकि मुझे लगता है फिर सेशन. थोड़ा सा इंटरनेट में वो हो रहा है, अभी वो बोलेंगे. मैम मेरी आवाज तो आ रही है ना आपकी आपको? आ रही है. यस यस अच्छा, बबीता अच्छा, मैम, आप बहुत क्लियर ऑडिबल है. शुरू में जब हमने सेशन स्टार्ट किया था तब थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, अब तो मुझे लग रहा है सब ठीक बिल्कुल ठीक है आपकी आवाज. आई थिंक जरीन के थोड़ा कनेक्शन में प्रॉब्लम है. कोई बात नहीं मैम. मैं give फिर them some जरीन की time. मदद से बाद में मिल लूंगी. लेकिन इतना ही कहना है कि अगर लड़कियों की फ्रेंड नहीं होंगी, जरीन ने बड़े आराम से कहा, मुझे उस बच्ची के लिए बड़ा अच्छा लग रहा है कि उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि उसने मुझे अपने मन की बात बताई. अगर किसी की कोई फ्रेंड ही नहीं होगी मैम, तो वो कैसे अपनी बात किसी के साथ कर सकते हैं? क्योंकि पेरेंट्स से बच्चे डरते हैं, है ना. इवन मैं अपनी बेटी को देखती हूँ सरगम को, वो हमारे साथ खा लिया पी लिया टीवी देख लिया मस्ती कर ली, पर जो बात वो अपनी फ्रेंड रीत के साथ करती है मोबाइल ले जाकर, है ना, वो हमसे नहीं करती है.
या अपने फ्रेंड की, जो फ्रेंड सर्किल है ना मैम, उसके साथ बच्चों का एक अलग लेवल की बातचीत होती है। हाँ जी, जरीन की मदर, मेरी आपके साथ एक बात है, एक गुजारिश है आपसे मेरी। बहुत प्यारी बच्ची है आपकी, ओनली 12 साल की बच्ची है। मेरी अपनी बेटी भी 10 साल की है। आप इनकी कोई फ्रेंड है, उनके साथ इनकी बातचीत कराइए। और देखिए, बड़ा तो होना ही है, बड़ा होना मजबूरी है। 12 साल की है, फिर 14, 16, 18 है ना। तो इन्हें खेलना जरूरी है, और इन्हें बात करना अपने फ्रेंड के साथ जरूरी है, ताकि ये अपने मन की बात डिस्कस कर लें। और आप देखना धीरे धीरे इनकी जो रूड आप कह रहे हैं ना, रूड है, ये खत्म हो जाएगा। मैम मैं नहीं कहती हूँ, मतलब सब कहते हैं। मैं तो खैर, मेरी तो बच्ची है ये, क्योंकि मैं तो कभी ना डांटती हूँ ना मारती हूँ, और इनके पापा तो कुछ कहते नहीं। हमारी तो लाडली बच्ची है ये हमारे तो कौन कहता है, एक तो बात, कौन कहता है रूड, कौन कहता 1 है? minute, can I say something? Excuse me, Zareen, Zareen, है तो ये बात नहीं करती हैं, वहाँ कुछ खाती नहीं, कहीं आना जाना रिश्तेदारों में पसंद नहीं करती हैं बिल्कुल, सिर्फ अपनी दादी के यहाँ और अपनी नानी के। एक मिनट, एक बात, छोटी सी मैं बात जरीन से, आई लाइक टू टॉक। जरीन बेटा, हाउ डू यू फील व्हेन पीपल कॉल यू रूड? हाउ डू यू फील? मैम वेरी बैड। वेरी बैड। अच्छा, जस्ट रिमेम्बर वन थिंग, व्हेन यू डोंट टॉक टू समवन ना, है ना, हम किसी से, अपने रिलेटिव से या अपने फ्रेंड से बात नहीं करते हैं ना, उनको भी सेम फीलिंग होती है दैट यू फील व्हेन पीपल कॉल यू रूड। So thoda sa try to avoid, try to talk to people, they will like it. And I think Zareen, your drawing is very nice. Yes ma'am. You love to draw? Yes ma'am, too much. Yes na? Yes. Ma'am, she is intelligent. Cultivate that habit. Let that habit grow in you. And Zareen की mother से मैं बोलूँगी, देखिए, she has a lot of talent. I have seen her drawing myself. Yes na? So jab, when she is focused so much on drawing things, on expressing herself through her drawing, she cannot express that same way with others. कोई बात नहीं अगर लोग कह रहे हैं कि rude है, she is not rude. She is just different, and it is good to be different. मैम असल में ऐसी बात है, कोई मैम अर्षा जी, दिस इज दैट थिंग जो मैंने डिस्कस की थी आपसे इन द पिक्चर तारे जमीन पर। उसमें भी टीचर ने ही पहचाना था कि दैट बॉय इज डिफरेंट, सो यू आर सेइंग शी इज डिफरेंट, है ना, एंड शी आल्सो लव टू ड्रॉ, है ना। तो मैम मैं इस लड़की से मिलूंगी, हाँ मैं इस लड़की से मिलूंगी जब मैं स्कूल में आऊंगी, और हम सभी लोग, वी ऑल आर यूनिक, है ना, एवरीवन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, सब लोग एक दूसरे से अलग हैं। तो हमें उसकी जो उसकी खासियत है उसको पहचानना है, जैसे इसकी ड्राइंग खासियत है, इसको पहचानना है। और मैं इसको कुछ टिप्स बता दूंगी, आप मुझसे मिलना। और एक तो ना ये कहना बंद कीजिए कि शी इज अ रूड, शी इज अ रूड, ये कहना बंद। कोई रूड नहीं होता मैम, परिस्थितियां रूड बनाती हैं। कोई बचपन में रूड पैदा नहीं होता। हमारा जो इन्वायरमेंट है ना चारों तरफ का, वो हमें रूड, वो हमें काम, वो हमें अच्छा बनाता है। ओके, आप रूड कहना बंद कर दीजिए इसको। ओके मैम। हाँ जी, हाँ जी मैम, और किसी का क्वेश्चन? हाँ जी मैम, और कोई? Okay, ma'am, Harsha ma'am, I think session is yes, going. Babita ma'am, and I thank you a lot for this wonderful session. A lot of thank you for. हाँ बेटा, who is it? Ma'am. Yes, beta, who is it? Please say your name first, because there are so many that we can see. Ma'am, Atufa. Atufa wants Atufa, yes, Atufa. Please on your camera, Miss Atufa. Yeah, she's a very pretty girl. Yeah. You are lazy. What is her mother saying? You are? Mom, lazy. Mother saying? Huh? Mom, lazy. Oh, lazy. Yeah, I understand lazy. Okay, बेटा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब सीख जाते हैं। After this is very minor thing, I think. ये तो lazy और ये तो आप लाइफ में धीरे धीरे कर ही पाएंगे। Nowadays everyone is lazy.
सभी लोग अपने घर में चुपचाप बैठे हुए हैं कुछ समझ नहीं है। कोई बात नहीं, कहाँ है आपकी मम्मी, कहाँ है? मत बात कर सकती हूँ। Where is your mother? You want to talk me? Ma'am, my mother is go with the nanny house. ओके ओके ओके, तो तुम अपने मम्मी के बिहाफ से आप बात कर रही हैं। ओके अर्षा जी, आई थिंक शी इज अ वेरी स्मार्ट गर्ल। जी, she is smart. She likes to study. Interact with Yes, others. na, education is her main aim. I was really impressed to hear that, Atufa. What you said was very nice, and the way you said was also very nice. Girl. She's very confident girl. Just one thing, like I said to Zareen, how do you feel when people call you rude? You feel bad. So you also feel bad when people call you lazy. Yes, na? They feel that कुछ नहीं कर रही है, तो थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ करना चाहिए. Yes, na? We should be helping at home, helping our mummy, and we will not be lazy. Then you will be happy, your mummy will be happy. That is our main aim as children, as people, as human beings, to keep each other happy. Yes, na? The people around us, we need to see to their happiness also. So our own happiness is very important, but also others' happiness is equally important. Yes, so we should be doing things at home. Yes, na? And we will not be lazy. Okay. Yes. Very smart girl. God bless. Okay, ma'am. Thank you so much, Babita ma'am. Okay, ma'am. Thank you, Arsha Thank ji. you so much, Babita ma'am, for making all of us aware to how we can maintain our physical and mental health during this tough time. This session would be really benefited with the thought and remedies that Mrs. Babita shared with us. Now, I would request our headmistress ma'am to please convey her vote of thanks. Thank you, Millie ma'am. Thank you so much for concluding the session. And a very, very big and hearty thank you to Babita ma'am, Mrs. Babita Sharma Swami, that in spite of a very busy schedule, she took out this time for us and shared this hour of counseling. And I hope this counseling was very meaningful. We all are enriched by listening to her. And what all ma'am has told us, we will try to follow it, imbibe it as we go on. We all know we are passing through a phase which is not normal. Yes, na, normal has been turned upside down completely. Yeah. That is why we are calling it the new normal. Yes, na, it is because it is not at all normal. But we have to go through, we have to pass through this pandemic. And it will be over. See, things don't get over. We can't say pandemic will be over. We will learn to adjust with it. And even the pandemic will learn to adjust with it. The coronavirus, even it will learn to adjust with our bodies, and it will not be affecting us so much in the years to come. It's an important request from all our parents I'm making right now. The vaccination is available. Our Prime Minister has made it free for all. So please book your slots and get vaccinated. It is very, very important. Get yourself vaccinated. As soon as we all are vaccinated, we can battle, we can fight out and defeat this disease. Our business, our social life, it will not be affected if we are vaccinated and we rid or make ourselves strong enough to battle this disease, to fight this disease. So it's my request to all our parents to get yourself vaccinated. Right now, vaccination is for the grown up above 18, and very soon we are getting to know that it's even going to come for children. So when it comes, then even children to take that vaccination. But for now, it is very important that all above the age of 18 get vaccination done. So that is it. And so ma'am, Babita ma'am, thank you so much for all the thoughts that you have shared. How we can... Yes, ma'am. Something it is my pleasure, ma'am.
Yes, मुझे ma'am. बहुत अच्छा लगा आपके बच्चों के साथ बात कर. थैंक यू श्वेता मैम, थैंक यू अर्षा जी, थैंक यू मिली मैम. एंड मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, स्पेशली छोटी छोटी गर्ल्स, प्यारी प्यारी. और आई वांट टू से ओनली 3 words. एंड अर्षा जी, यू नो 3 F, very important in life. 3 F: find it, follow it, finish it. And I think this is very important. Find it, follow it, finish it. सबसे पहले हम कोई चीज ढूंढते हैं, क्या प्रॉब्लम, देन हम फॉलो करते हैं उसको, और तब हमारी वो खत्म हो जाती है. ओके मैम, Thank you so much. I thank Shweta ma'am for conducting, organizing this session wonderfully. Thank you so much, ma'am, for your diligent efforts and for seeing that everything was prim and proper. Thank you so much, ma'am. Thank you, Ayushi ma'am, for playing the PPT, and Millie ma'am for the conclusion that you gave, and all the teachers who participated, encouraged the girls to join in. Thank you, children, for being a part of it. Yes, as ma'am has told, just quickly I would like to mention a few things. We don't know when the schools will open, but whenever the school opens, yes, remember, bring it into your habit. You have to wash your hands after touching anything. Yes. Now, water is precious. You can't be running every time to the washroom to wash your hands. Keep a sanitizer with you and keep sanitizing your hands all the time. Yes. Then keep a handkerchief with you. That will become very, very important. Your tunics, they have a pocket. See that there's a handkerchief in your pocket at all times. Whenever you cough, whenever you sneeze, just cover your mouth. Yes, mask. Yes, masks are important. Right now, we all are wearing masks, but I don't know till when we have to continue wearing these masks. Yes, but still, a handkerchief, I'll say, should be there at all times, and bring it into, at home we are not wearing a mask. So keep a handkerchief with you, and anytime you sneeze or cough, just cover your mouth so that when you are ready for school, this becomes a habit in you. Yes. And less of internet. One thing I will like to add, if you have seen, as you watch movies, as you watch different sites on the internet also, there's always age limit given if you have searched for it. Yes, age starts at 7. It's written viewership for 7+. So remember, all those who are under the age of 7, you should not be spending time on the net. All are small ones, class 1. Yes, na? So, certain things are fit for age 7 and above. Then comes age 12 and above. Those who are in the age group 7 to 12, please don't hop on to sites which are 12 and above. Don't watch them. Yes, be cautious. This is not for me. I don't need to watch it. Then it is 15+. So those who are at the age of 12, do not go and watch things which are 15+. And 15, we have 15+ also. Certainly you cannot touch anything that is 18+ and above. Yes, be away from it. It is not. So careful, cautious viewing, because internet is very important. Yes. You cannot do without internet today. We cannot do anything without internet. So let it be a blessing for us rather than being a thing of sorrow or thing of troubles. And personal hygiene, and the best mentor you can find in life is your parent. Either your mother, your father, or both of them. Your parents are your best mentor. Never think that mommy calls me this, papa thinks I am like this. No. If they think so, just try to find out why and try to resolve it, remove it. Your safe zone are your parents. After that, your teachers, your counselor. Yes, like Babita ma'am, you can confine things to her. Ma'am will be joining our school. Yes, ma'am. You are also a counselor, I think. You are saying very nice words. Yeah, regular you are saying very counselor, nice words, very ma'am will be knowledgeable with words. us.
Thank you, ma'am. So ma'am will Yeah. be with us as a regular counselor from now on. So you can confine to her, Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. but no one else. Your friends are of your age. Yes. So they can never counsel you. They can never tell you what is right because they also don't know. They are just like you. So your parents and then your teacher and your counselor. Yes, remember this. I would conclude it the day. Thank you so much, teachers. Thank you so much, girls, parents, and a very, very big thank you to Babita ma'am for being with us Thank today. you, ma'am. Thank you. Thank you Welcome, so ma'am. much. Thank you. Okay, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. We can Okay, ma'am. close the Thank you. meeting.